उनका टिकट मुझे लग रहा है कि कट सकता है फॉर नॉट फॉर द टॉप 4, बट लाहौर के लिए टिकट कट सकता है कल, बिकॉज अभी. So hello and welcome back, guys. So we are back with the third episode of Cricstop, and as we all know कि वर्ल्ड कप एक बहुत ही एंडिंग स्टेज पे अब आ चुका है, एंड इट्स वेरी मच क्लियर दैट what all which all teams are going into the top 4 and which all teams are going back home. So first of all, guys, straight to the point. First question जो मेरा तुम लोग से है, we'll start with Tanishk. We have Devanshu, we have Harjas, and Tanishk is joining as a guest today. You guys might be seeing him for the first time today, and Harjas and Devanshu as regular members. So the first question, I think जो सबसे पहले मेरा रहेगा about India, the probably मेरे नजर में at least so far the best team of this tournament. What are your thoughts, Tanish, regarding India's performance so far? And do you see them as a potential winners of this World Cup? Yeah, definitely. There's no one who doesn't see them as, the, one of the main contenders to go for it. But मेरे को जो recently जो श्रीलंका का मैच था, उसमें the best positive that I thought was कि श्रेयस अय्यर की 82 of 56 balls, I think. तो हमने बहुत ज्यादा श्रेयस अय्यर के बारे में बहुत कॉन्वर्सेशन सुनी थी कि वंस पंड्या गेट्स फिट तो कौन आएगा उसकी जगह पे. तो नाउ आई डू नॉट थिंक कि अय्यर डिस्पाइट ऑफ हिज फॉर्म, रीसेंट फॉर्म, उसने अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज नहीं करा. एवरीबडी कैन हेल शमी एंड ही डिजर्व्स टू, बट ओवरऑल जो अय्यर का परफॉर्मेंस था, पूरा 11 अब हमें दिख रहा है कि कौन कौन खेलने वाले, एंड एवरीवन हैज पीक्ड एट सम पॉइंट until now. एंड आई होप कि कोई ना कोई हर मैच के अंदर 2 या 3 बंदे फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई ना कोई पीक करता जाए. और आई एम होपिंग कि साउथ अफ्रीका जो अभी जो सेकंड बेस्ट टीम है, लेट्स सी उसके सामने हम क्या परफॉर्म करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू सी अस पुटिंग अ स्कोर फॉर देम, एंड देन विल सी इफ दे कैन चेज और नॉट, क्योंकि उन्होंने भी कभी, आई एम श्योर कि एक पाकिस्तान का मैच था और एक नेदरलैंड्स का मैच था. पाकिस्तान वाला वो लास्ट मोमेंट पे जीत गए, केशव महाराज ने जो खेला लास्ट में, और बाकी नेदरलैंड्स के सामने आई थिंक दे लॉस्ट बाय 50 ऑड रन्स, राइट. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया के साथ साथ जो सेकंड फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, वो कैसा करेगी आगे जाके. सो या, apart from it, I think everyone's now once Pandya comes, I think Surya Kumar Yadav will be the person who makes room for him. So uske baad we'll see how team work, how Hardik Pandya performs as well. Yeah. Exactly, I'd like to clearly agree with you, Tanish. I think Hardik Aega and I think Surya is the one who would have to step down. Other than that, Team India is playing absolutely well. And it's like it's अगर ये टीम अगर अब जाके नहीं जीतती है वर्ल्ड कप, तो then there is definitely problem with the luck. It's like इतनी अच्छी टीम when every player is performing. It's not like हमेशा सिर्फ टॉप 3 खेलेगा या सिर्फ कुछ bowlers खेलेंगे. Every player is performing. And like this was very important, a very important game for Shreyas Iyer. Because I think काफी टाइम से उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था. It's not like उसने रन्स नहीं बनाए. He has got 50 if I'm not wrong. But I think that position where Shreyas Iyer bats is a crucial position. He doesn't have to accelerate every time. He doesn't have to play fearlessly. Sometimes situation ऐसी होती है that he has to एकदम defensively खेलना पड़ता है. And I think he is doing it well. I think at this position where he's playing, it's not only about numbers, but it's also about rotating strikes. And Shreyas Iyer has been doing it so well in the World Cup. We all saw what happened in the last match. That 80 odd runs was a great inning from Shreyas Iyer. So I think that was a good morale boost for him. Other than that, while talking about, there's one thing which is currently going in a very trend in Team India is the fielding award. And oh, that is such a delight to watch. Like match खत्म होता है and post press conference से ज़्यादा interested होता है कि जब next video आएगा about the best fielding award. And it has always hyped up. It started from TV पे दिखना to coming on the camera, coming on the side screen,
then eventually light show se KL Rahul ka, and then last night Sachin Tendulkar finally giving the award. So it's a great thing to watch. Apart from that, yes, Team India is playing well. Fingers crossed. ज़्यादा नहीं बोलना है. Of course, let's not jinx it. Let's see what happens this time. देखो बात तो सही है आई मीन एशिया कप के पहले आई थिंक इट वाज अ टाइम वेयर क्वेश्चंस थे नॉट गोइंग टू लाई बिकॉज योर के एल राहुल वाज इंजर्ड श्रेयस अय्यर वाज इंजर्ड आपके पास बुमराह वाज इंजर्ड शमी उस समय खेल नहीं रहा था उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड पीपल वेर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा एज अ कोचिंग यूनिट एंड वो ठीक भी थे क्वेश्चंस बट आई थिंक सिंस एशिया कप ना आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अब देखो मतलब जिस तरीके से द मोमेंट आई थिंक वी ऑल टॉक अबाउट विराट कोहली वी ऑल टॉक अबाउट रोहित शर्मा हाउ ग्रेट दे आर वी ऑल टॉक अबाउट के एल राहुल बट आई थिंक पिछले 6-7 साल में ना फॉर मी द बिगेस्ट मैच विनर जो ऑन द सेम लेवल एज विराट एंड रोहित है वो है जसप्रीत बुमराह यू नो द मोमेंट ही हैज कम बैक टू द टीम आई थिंक वो एक अलग सा एनर्जी आ गया पूरे बॉलिंग यूनिट का एंड पूरे टीम में इट्स लाइक कि चलो बुमराह आ गया ना अब है वो बॉलिंग अटैक आपको कंप्लीट दिखती है उसके उनके साथ आप एशिया कप में उसका परफॉर्मेंस देखो वो ऐसा लग रहा है कि कभी उसको इंजरी हुआ ही नहीं तो क्रेडिट्स टू बीसीसीआई एंड एनसीए उसका इंजरी को हैंडल करना क्योंकि आपने पूरा 1 साल दिया उसको कि भाई तुम लो आराम से तुम आओ वर्ल्ड कप के लिए फिट हो एंड वो ऐसे बॉलिंग कर रहा है जैसे अभी मतलब पिछले जब 4 साल पहले बॉलिंग करता था वैसे ही इज एट इज बेस्ट राइट नाउ तो फॉर मी मोर देन द बैटिंग आई थिंक जो बॉलिंग जो अभी हो रही है ना आई थिंक ये जो ट्रियो है फॉर मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह एंड सिराज आई थिंक टूर्नामेंट का तो बेस्ट बॉलिंग यूनिट है ही है इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक इंडियन हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे आई थिंक फॉर मी दे हैव टू बी द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप एज अ यूनिट स्पेशली अगर इफ यू सी मोहम्मद शमी के बारे में इफ यू आई मीन यार 3 मैचेस में 14 विकेट्स इज नॉट अ जोक आई मीन ये ऐसा हो गया कि आपने 7 मैच में 4 मैच में सेंचुरी बना दिया अगर एक बैट्समैन के लेवल पे आप देखो इट्स समथिंग लाइक दैट इट्स एक्चुअली वेरी क्रेजी तो आई थिंक इम्पैक्ट अब टॉप ऑर्डर विकेट्स आपने किसी भी टीम को इसमें 300 बनाने नहीं दिया बाय द वे ये एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक है दैट इंडियन टीम ने किसी भी टीम को इस टूर्नामेंट अभी तक 300 नहीं बनाने दिया एक ऑपोजिशन आएगा साउथ अफ्रीका लेट्स सी वो कैसे हैंडल करते हैं बट आई थिंक सो फार एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बैटिंग आई थिंक most credit I'll like to give it to the captain that the way he has led the team, and not just in terms of batting, but with the intent that he has showed from ball one. I think Rohit Sharma as a captain was trying to do that in T20 World Cups also, but wasn't able to get it. You know, वो नहीं हो पा रहा था. ODIs में क्या है कि you can take that bit of time, and I think Shubman Gill allows Rohit Sharma to go after the shots. तो आई थिंक रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे लाइनअप में एंड देन विराट कोहली तो है ही विराट कोहली का जो फॉर्म लगा हुआ है इस बार आई थिंक द बेस्ट वी हैव सीन इन द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स आई थिंक उससे भी बेटर ये अभी तक का विराट कोहली का वर्ल्ड कप जा रहा है श्रेयस अय्यर का यस वी हैड सम डाउट्स रिगार्डिंग दैट शॉर्ट बॉल जो उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम झाड़ दिया एक रिपोर्टर को कि मेरा कोई इशू ही नहीं है अभी वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा ये लगा था बट ठीक है आई थिंक जिस तरीके से श्रेयस अय्यर बैटेड वाज आउटस्टैंडिंग बट वही आई जस्ट होप कि कम द बिग स्टेज कम द बिग गेम आई थिंक दे आर रेडी एंड आई एम श्योर मतलब ये ऐसा देख के लग रहा है ना अभी पूरी टीम को कि एज अ यूनिट आप रन कर रहे हो इवन रविंद्र जडेजा हैड मेनी क्वेश्चंस बिफोर द वर्ल्ड कप और आप देखो 2 इनिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड 2 अगेंस्ट यस्टरडे विद द बॉल एज वेल तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेरे को बहुत सही चीज लग रहा है और लास्ट चीज यही है कि आई थिंक वो पैनिक नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऐसे बहुत सिचुएशंस इंडिया के पास आए इस वर्ल्ड कप में वेयर दे कुड हैव पैनिक्ड स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 विकेट गिर गए थे तो डरे नहीं वो लोग और स्पेशली आप इंडियन टीम को लास्ट टाइम अगर देखते वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में सेम सिचुएशन में थे बट दे पैनिक्ड उसका आप ड्रेसिंग रूम में देखो इधर हलचल हो रहा है ये उधर भाग रहा है वो उधर भाग रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है बैटिंग ऑर्डर हो गया इधर से उधर तो इस बार क्या है कि आपको पता है कि मेरे ये बैट्समैन है शुरुआत से यही है एक्सपीरियंस भी उनको है अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द बिग डे एंड है मतलब आई थिंक टर्म्स ऑफ स्किल तो आप सबसे अच्छी टीम हो ही इट ऑल कम्स डाउन टू हैंडलिंग दैट प्रेशर ऑन द बिग डे एंड आपने फिर भी एशिया कप फाइनल तो जीता ही है एक फाइनल तो आप जीते ही हो ना मल्टी नेशनल टूर्नामेंट का चाहे जैसे भी टीम हो ऑपोजिशन आप जीते हो तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट There's one thing I want to say before Harjesh, you go ahead. It is कि I really think Virat is actually under pressure this time. Like, तुम अगर देखो पिछले 2 innings, after scoring 80-85, he is under pressure. He wants to get that 49th century, and I think that is posing a little problem. If you see him play in the last game,
80 runs तक he has played very nicely, like बहुत आराम से खेल रहा है वो, he's hitting boundaries. But 80 के बाद वो pressure build हो रहा है. Just see the amount of conversions he is doing. Dot ball percentage बढ़ रहा है after he's scoring 80. So I just hope कि वो ये चीज दिमाग में ना रखे कि he has to beat the record of 49 centuries before this World Cup. But he just plays how he does. And I think अगर वो नहीं होता है, then I think 50 centuries he'll definitely compete. And साथ ही he'll have a clear mindset कि it's about winning this time. I'm not saying कि Virat is not a team player, but of course, no matter how great of a player you are, you have it is always कि तुमको records beat करने होते हैं. But I just hope कि it doesn't build a mental pressure on him, and he plays fearlessly how he always does. Yes, sir. Just you can go ahead now. rightly so मोस्टली देवांशु तनुष्का एंड सभी ने ज़्यादा कवर कर ही दिया. मैं इतना इसलिए इंडिया के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट आई थिंक सो 2-3 पॉइंट्स. जैसे हमें पता चला हार्दिक पांड्या बाहर है अगेंस्ट दैट बांग्लादेश वाला मैच. वहाँ पर देयर वाज अ गुड डिसीजन कि आपने 5 बॉलर्स थे, 5 बॉलर ऑप्टिमाइज किए. बट कमिंग बैक टू बाकी के जो थोड़े डेड मैचेस हमने खेले, राइट, श्रीलंका के अंदर सेकंड इनिंग्स में आफ्टर 5 डाउन या 6 डाउन हम कितना भी किससे भी बॉलिंग कराओ, इट वुडंट हैव मैटर. तो वहाँ पर फिर आप जो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो भी रिपोर्ट्स में लेके आए थे कि हमारे नेक्स्ट में बॉलर्स बैट्समैन भी बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप अपने 1-2 पार्ट टाइमर से हाथ घुमा के देख सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली को भी बॉलिंग दो. देर आर मनी अदर प्लेयर्स, सूर्य कुमार यादव भी नेट्स में बॉलिंग डालते हैं. इफ यू वांट यू कुड हैव ट्राइड हिम. बाकी देर आर मेनी अदर ऑप्शंस टू. शुभमन गिल ऑल्सो डालते नेट्स में, आप 1-2 ओवर वहाँ से निकलवा सकते थे. बट अगेन दैट सेकेंडरी इशू, 5 बॉलर्स की स्ट्रेटजी से आप गए हो, आपको नेट रन रेट बढ़ाना था, दैट वाज अ गुड थिंग. बट या ये एक चीज हो सकती थी. बाकी श्रेयस अय्यर का जो शॉर्ट बॉल का डिस्कशन है, जो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, उन सब से मुझे कोई मैटर नहीं करता. श्रेयस अय्यर का एक स्टैट मैं आपको बोलना चाहूंगा. स्टैट छोड़ो, इट्स रियलिटी क्या होता है. अगर श्रेयस अय्यर पहले 10 ओवर में बैटिंग करने आए तो शॉर्ट बॉल तो गारंटी आएगा. एंड दैट्स वेयर ही इज लॉस्ट हिज विकेट, राइट. 10 ओवर के बाद जब ओपनर से किसी ने भी मैच निकाल दिया थोड़ा भी, लाइक श्रीलंका का मैच ही देखो, 30th ओवर, नो प्रेशर, अच्छा खासा स्टैंड आउट मिला. श्रेयस अय्यर को पता है कि मुझे टिकना नहीं है यहाँ से, मुझे बस जाके मारना है. दैट्स वेयर श्रेयस अय्यर परफॉर्म्स इज मैक्सिमम. वो उनका जोन है. उनको अगर आप रन ला के दोगे तो श्रेयस अय्यर अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं. बिकॉज श्रेयस अय्यर लाइक वो नहीं है वैसा बैट्समैन के टुक टुक करेगा जाके विकेट के ऊपर. लाइक आईपीएल के थ्रू हमने देखा है, दिल्ली कैपिटल्स का रेवोल्यूशनाइज श्रेयस अय्यर ने किया था अपनी कैप्टनसी के अंदर, एंड ही हैज बीन दैट काइंड ऑफ प्लेयर. बट यार नंबर 4 पे अगर खिलाना है किसी को, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं श्रेयस अय्यर को थोड़ा नीचे पुश करके राहुल को ऊपर जाना, क्योंकि राहुल ऑब्वियसली फिर उनका नेचुरल गेम ही थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव है, वो विकेट पे ज़्यादा रह सकते हैं. तो एक चीज़ वो हो सकती है. बट या कमिंग इन दिस टूर्नामेंट अब ये ज़्यादा लेट भी हो चुका है, क्योंकि बोलते हैं कि जो चीज़ चल रही है हमारी कोडिंग की भाषा में, बोलते हैं आईटी भाषा में, अगर आपका कोड चल रहा है तो उसको छेड़ो मत. तो वही है बस. यहाँ से देखो बात इसमें सही है, पता है, 1-2 पॉइंट बस हम लोग बस 2-3 मिनट में रैप अप करेंगे इंडिया के बारे में. बस इसमें यही है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन का जो बात किया ना अभी यार, जिसने कि 5 बॉलिंग ऑप्शन, 6 बॉलिंग ऑप्शन. देखो, एनी गुड टीम, एनी चैंपियन विनिंग, टूर्नामेंट विनिंग टीम शुड ऑलवेज हैव मोर देन 5 बॉलिंग ऑप्शन. आज के टाइम पे योर बैट्समैन कैन नॉट बॉल, लेट्स बी ऑनेस्ट. वो अब प्रैक्टिस नहीं करते हैं नेट्स पे, जैसे पहले सचिन, सहवाग, गांगुली सब बॉलिंग करते थे, युवराज, ठीक है, वैसा टाइप का अब है. अब क्या कर सकते हो. इसलिए इंडिया ने आई थिंक शार्दुल ठाकुर वाला कॉम्बिनेशन वो लोग यूज करते थे. नाउ व्हेन हार्दिक कम्स बैक, what are they going to do? Are they going to go back to the Shardul Thakur option, or are they going to stick with your 3 fast bowlers as Shami and, क्योंकि आपके जो ये 5 बॉलर है ना, गॉड फॉरबिड कोई इंजरी बस ना हो, आपके 5 फास्ट बॉलर्स के अगर एक बॉलर का भी खराब दिन भी आया है ना, दे कैन स्टिल कंप्लीट द 10 ओवर्स. उन पांचों में इतनी क्वालिटी है. तो आई वुड स्टिल से कि व्हेन हार्दिक कम्स बैक, आप जाओ पांचों के साथ. क्या होगा, 5 बॉलिंग ऑप्शंस है. मान लो कि आपके पास, चलो ठीक है, बैटिंग कम हो जाती है, मान लो आपने 350 के बदले 300 रन ही बनाए, और आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो 300 पे भी ऑपोजिशन को कर सकती है खत्म. ठीक है, थोड़ा सा सॉरी ये टू है. कट यू समीर. जैसे हमने कहा 5 बॉलिंग कॉम्बिनेशन, बट हार्दिक भी अगर अंदर आ जाते तो 6 बॉलर हो गए ना हमारे पास. हार्दिक इज ऑल्सो बॉलर हु कैन टेक आउट हिज 10 ओवर्स. ऐसी बात तो है नहीं कि 10 ओवर नहीं डाल सकते. ही इज ऑल्सो गुड विद स्विंग, नेचुरल स्विंग बोलते हाँ हाँ, नहीं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, सही बोल रहा है कि हार्दिक पांड्या व्हेन ही कम्स बैक, द इशू वही हो जाएगा कि योर बैटिंग विल गेट ओवर एट 7.
विद रविंद्र जडेजा। तो ठीक है, आई मीन योर बैट्समैन अगर कम पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो 5+1 हार्दिक पांड्या, तो वो तो बहुत अच्छा बॉलिंग हो गया ना। हार्दिक पांड्या भी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, इवन व्हेन विद बिफोर द इंजरी ही वाज बॉलिंग रियली वेल। तो वो है। एंड देवांशु का जो पॉइंट था रिगार्डिंग सेंचुरीज, देखो इट्स जस्ट, आई एम श्योर प्लेयर्स को तो पता ही होगा, एंड जैसे वो लोग खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट को, स्पेशली द कैप्टन एंड ऑल द अदर प्लेयर्स, दे आर लुकिंग वेरी डिटरमिन्ड टू विन दिस। वो दिख जाता है जब आप खेल में देखते हो ना, वो इट वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। आई एम बस 4 मैचेस का और दे रही है, गिव काउंटिंग द फाइनल ऑल्सो। फॉरगेट ऑल द सेंचुरीज, फॉरगेट ऑल द हाफ सेंचुरीज, फॉरगेट रोहित शर्मा के कितने हंड्रेड्स है, सूर्य कुमार के कितने हंड्रेड्स है, किसके भी कितने हंड्रेड है। यू जस्ट नीड टू गो इन और एज अ, बस ये 4 मैच किसी तरह, पहले 3 मैच ऑफ कोर्स सेमीफाइनल पहले है, यू जस्ट हैव टू समहाउ गो आउट देयर एंड जस्ट डू इट एज अ टीम, जैसे आपने अभी तक किया है। बिकॉज सेमीफाइनल में आपको वही टीम मिलेगी जिसको आपने ऑलरेडी लीग मैच में हराया है, मोस्ट प्रॉब्ली न्यूजीलैंड या जो भी मिलेगी, वो विल डिस्कस दैट इन दिस वीडियो ऑल्सो। बट बात वही है, तो सेंचुरीज आई एम श्योर वो आ ही जाएगा, वो तो कभी ना कभी आना ही है। बट हाँ, वो थोड़ा सा जो एक मैच में हुआ था ना, दैट ही वाज गोइंग आफ्टर द सेंचुरी, उसमें कोई इशू नहीं था, चलो मैच ऑलरेडी वाज खत्म हो गया था। आई थिंक वो जो सेकंड मैच था ना, जो बांग्लादेश के साथ, नहीं बांग्लादेश या जिसमें ही वाज गोइंग फॉर इट, जिसमें 5, न्यूजीलैंड, आई थिंक हाँ न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड वाला, Yeah. एंड उसमें अंपायर ने भी फिर वाइड नहीं दिया। आई थिंक वो मुझे ना थोड़ा सा आई वाज कॉट ऑफ गार्ड कि ये सब का जरूरत नहीं है। अब वाइड You अगर mean है the तो बांग्लादेश वाला मैच बांग्लादेश जिसमें वाला, सेंचुरी लगी? एक बांग्लादेश वाला था कि उसमें वाइड अंपायर ने नहीं दिया था, बट देन जो न्यूजीलैंड या वाले में था कि यू जस्ट नीडेड 5 रन ऑफ 12 बॉल्स। बट ठीक है, देखो अब वही 5 रन ऑफ 7 बॉल्स अगर होता, वुड हैव डन द सेम थिंग, क्योंकि शमी ने आना था नेक्स्ट। और वहां से तो बैटिंग अपना पता नहीं ना, वहां से बैटिंग तो अपना सॉरी ही है पूरा। तो ठीक है, बट आई एम श्योर, देखो दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दे नो द बेस्ट ऑफ हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, एंड आई एम श्योर इंडिया विल डू वेल दिस टाइम। सो या लेट्स होप मूविंग फॉरवर्ड। you know yeah, हाँ actually Samir, I wanted to add a couple of points. So काफी underrated है, like none of us have really discussed about Rahul ki keeping, the way he has adapted from being a outfielder, and बाकी उसने जो the kind of catches he has been taking, and जो एक आई थिंक सिराज का बॉल था ड्यूरिंग श्रीलंका मैच, जिसमें उसने इजीली लाइक 8 रन, उसकी एक ही ओवर में 8 रन रोके थे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जडेजा, यू नो जडेजा इज अ हसलर नाउ। the way he has been running, between the wickets, the way he is fielding, overall, like he has been one of the best fielders in the world for a while. And जो उसका ओवर रेट है, तो जो जितनी स्पीड में वो ओवर फेंकता है, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। और ओवरऑल हमें यही टाइप का एटीट्यूड चाहिए। विराट कोहली सबसे ज्यादा सेंचुरी मारेगा, और मे बी रोहित शर्मा कैन, अगर उसको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है एंड ही कंटिन्यूज, तो वो भी 150 और एक बार हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो काइंड ऑफ प्लेयर्स है, जो बीच बीच में सिराज जो बॉलिंग कर जाता है, और जडेजा का रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कोहली का रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये सारा टर्न बाय टर्न ऐड होता जाता है, और एट द एंड ऑफ द मैच आप 50 रन आगे हो सामने वाली टीम से। यस, तो ये जो एटीट्यूड है, वो एक सेम जो टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें दिख रहा है। ये अफगानिस्तान में भी दिखता है, ये साउथ अफ्रीका में भी दिखता है, और इंडिया में दिखता है। तो आई होप ये सारी चीजें कंटिन्यू रहे, और जो ओवरऑल एटमोसफियर है टीम का, इट इज क्वाइट हैप्पी ओवरऑल, फ्रॉम व्हाट वी सी फ्रॉम द मीडिया और जो भी चल रहा है। सो अच्छा है, चलता रहे बस। डेफिनेटली, आई थिंक ये एक बहुत Yeah. पॉजिटिव पॉइंट है। आई थिंक जब भी एक टीम के 11 प्लेयर्स क्लिक करने लगते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ये दैट्स व्हाट यू वांट एज अ टीम। और 2011 टीम में भी ऐसा ही था। तो आई वुड स्टिल से 2011 की बैटिंग तो शायद हमारे पास नहीं है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर, बट आपकी जो बॉलिंग है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉलिंग फील्डिंग यार इट्स वर्ल्ड क्लास। स्पेशली बॉलिंग आप कंसिडर करो, अंडर लाइट्स ऑपोजिशन को खेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। एनीवेज, मूविंग ऑन फ्रॉम इंडिया, आई थिंक सेकंड टॉपिक यही है जो जिसका कल बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है, गिवन द फैक्ट दैट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इज गोइंग टू हैपन इन द मॉर्निंग। बहुत बड़ा गेम है। एंड देन ऑफ कोर्स इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो भी बड़ा गेम है, बट गिवन द फैक्ट हाउ इंग्लैंड हैज परफॉर्म्ड, आई डोंट थिंक कोई वैल्यू वैल्यू है। मेरा क्वेश्चन यही है कि गिवन द फैक्ट दैट पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में अब तक, हाउ डू यू सी इट? इज इट वाज इट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस? क्या उन्होंने जस्टिफाई किया अपने पोटेंशियल को? हाउ डू यू सी बाबर आजम एज अ कैप्टन? और हाउ डू यू ओवरऑल एसेस पाकिस्तान? क्या उनका एक चांस है? देवांशु, आई स्टार्ट विद यू इस चीज में। While talking about qualifications first, I think
the team which wins tomorrow is going to come fourth. Pakistan, New Zealand, जो भी कल जीतेगा is going to come fourth. Because I know we have chances कि Afghanistan can qualify, but we have to be practical. They have the next game with South Africa coming up, and it's not easy. So, like, we have to be practical about it. I know Afghanistan is playing great, like the best cricket they have played. They have qualified for the Champions Trophy for the first time in history. Great with that. But yes, while talking about Pakistan, I think if they win tomorrow, they're qualified. They're coming fourth in place of New Zealand. But while talking about Pakistan as a team, I'm sure they would have come here with high hopes. Ki, uh, First of all, those political reasons, of course, where Asia Cup was not played there, and then they were like, India में जाके हराएंगे India को. But of course, those things are just like media publicity के लिए. Being very practical, being very practical. Pakistan in T20s is way better than Pakistan in ODIs. Pakistan in ODIs is not actually like, if you see सारे players click नहीं करते हैं. They don't even have a proper coordination between the players. Like if we even hear the stump mic, the atmosphere is not good. We have heard that in the stump mic कि players के बीच में coordination नहीं है. They don't have a good teamwork. Those things really help because in ODIs is a long format game. It's not like T20s की एक डेढ़ घंटे में खत्म हो गया है. Here you have to play अच्छे से. You have to have that determination because keeping on rotating strikes for like 10-15 hours is not a joke. And I think Pakistan is lacking there. Pakistan have won against associate teams like they always do. But while playing against big teams, I don't think it is possible. India के सामने हमने देख लिया how they played. And like that wasn't even it was a close game. It was such a one-sided game. So like Pakistan either wins with easy games or just loses. We also what happened with Afghanistan as well. Pakistan Afghanistan के सामने भी हार गया था. Players are not well. Like I think we had raised this point in the last podcast as well that they are just overusing some players and that is why they're getting rusty. There has to be a bench strength in Pakistan which is lacking. जिसकी वजह से जो players 11 में है वो overuse हो रहे हैं. Or I think there are some political issues as well going on with their management as well. So it's like वो सारी चीजें एक ही बार आ गई है. And players have legit started questioning Babar's captaincy, where they're like, Babar should leave captaincy and just focus on his batting. So it's like all the things have dawned upon Pakistan team at the same point, from bowling to batting to the management issues to even the crowd. I mean, we all know that इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे खेलने आए हैं, but pressure is real. Like टीम इंडिया अगर तुम इंडिया में आके बिल्कुल अगर तुम एक्सपेक्ट ना करो पाकिस्तान का क्राउड तो इट डज पुट अ प्रेशर इन योर हेड. इट्स नॉट लाइक ओनली दैट इज व्हाट यू नीड. इट्स नॉट लाइक उसके बिना नहीं जीत सकते हो बट इट डज पुट अ प्रेशर ऑन देम. सो आई थिंक बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई पाकिस्तान टीम के ऊपर एंड दे हैव टू लेजिट स्टार्ट वर्किंग आउट फ्रॉम स्क्रैच वेयर दे हैव टू आल्सो बिल्ड अ बेंच स्ट्रेंथ एंड हैव टू फोकस ऑन द गेम प्रॉपर्ली. I don't see them qualifying. I don't see them winning tomorrow as well against New Zealand. And I think the tournament will just be till the league stage for Pakistan. And तो I'm पाकिस्तान sure, का sorry to interrupt, but I think I'm sure Samir is the right person to talk about Pakistan. आई थिंक तनिष्क द लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो जाके कभी वापस देखना एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड. बट फर्स्ट हरजस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं एंड में बोलता हूँ. आई थिंक सो पहली बात तो ये फैक्टर होगा ही नहीं कि जो भी कल मैच जीतेगा फोर्थ फिनिश करेगा. लाइक ऑब्वियसली पहली बात तो पॉइंट्स टेबल आप खोल के देखोगे तो अफगानिस्तान के पॉइंट्स इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा है. सो आपके पास दोनों के पास दो दो मैच बचेंगे. अगर वो जीतेंगे तो 8-8 पे पहुंचेंगे. दोनों के पास दो दो मैच जीतेंगे. एंड अभी यहाँ से सब टीम्स के मैच क्वालिटी साइड से बाकी ऑब्वियसली पाकिस्तान को इंग्लैंड मिलेगा. बट फिर अगेन इंग्लैंड इज इंग्लैंड. अभी आपने उनको इतना दर्द दिया तो कुछ भी करके इंग्लैंड को भी एक वो चैंपियंस ट्रॉफी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो तो पार करने भी. वर्ल्ड कप तो जा चुका है आपके हाथ से. हार्ड टू एक्सेप्ट है बट इट्स ओवर फॉर यू जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करे. बट या इंग्लैंड लास्ट लास्ट में जब एलिमिनेशन हो चुका है उनका उनको ही पता होगा अंदर से वो वहाँ से एक ना एक गेम तो निकालेगा बॉस. क्योंकि ऑब्वियसली बेंच स्ट्रोक जैसे क्वालिटी पे ज़्यादा दिन शांत नहीं बैठ सकते. उनके अंदर वो हंगर है टीम में. हाँ जहाँ तक फिर भी हम पाकिस्तान की बात करें तो नो चांस होंगे. आई थिंक सो न्यूजीलैंड फोर्थ प्लेस का आई थिंक सो
table is still wide open for two places because I'm seeing India being first to already semi-final हो चुका है confirm. Second will be Africa and जहाँ तक थर्ड फोर्थ की बात करें वो स्पॉट सभी लोग तो अवेलेबल है बिकॉज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अगले मैच में भी उनके दो बिग नेम्स मिसिंग होने वाले एंड मैक्सवेल हैज बीन द फैक्टर फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो अगर वो चलो कल का मैच जीत भी जाए तो भी वो न्यूजीलैंड से ऊपर नहीं जा पाएंगे ना ही अफगानिस्तान से ऊपर जा पाएंगे उनको आगे मैचेस जीतने यार ऐसा नहीं होगा कि वो सारे बचे हुए दो मैच में से एक भी ना हारे जिस हिसाब से टीम चली बिकॉज क्वालिटी अपोनेंट्स आएंगे एंड जहाँ तक बात करें पाकिस्तान की टीम की तो ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में पहले डिस्कस कर दिया कि ओवर यूजेज है आधे प्लेयर्स का एंड ऐसा नहीं उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ अपना टेस्ट नहीं किया है बट ये उनका बेंच स्ट्रेंथ भी सेकंड बेंच स्ट्रेंथ बोल सकते हैं बिकॉज उनका जो मेन बेंच होना चाहिए वो तो आधे इंजर्ड पड़े हैं लाइक नसीम शाह खेलने चाहिए टेक्निकली वो हॉस्पिटल में आराम कर रहा है होप उनको भी बुरा लग रहा होगा ऐसी परफॉर्मेंस देख के टीम की बाकी बैटिंग ऑर्डर के बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में ये बात करी थी कि अनसेटल्ड है टॉप ऑर्डर स्पेशली आपने कितने चेंजेस किए टॉप ऑर्डर में आप खुद देखे वो भी तीन प्लेयर ही शिफ्ट हो रहे हैं इट्स नॉट लाइक एक ही प्लेयर जाके सेटल हो गया वहां पर वही तीन प्लेयर हर बार एक के बाद एक सर्कल घूम ही जा रहे सेटल हो नहीं रहा ठीक है आपने लास्ट गेम बांग्लादेश के खिलाफ जीता है बट बांग्लादेश भी तो फिर आगे बॉस नीदरलैंड से हारा ही है देखा जाए तो बांग्लादेश भी कौन सा अच्छा परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप में राइट तो वही है पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो एनी चांस फ्रॉम हियर एंड कल कोई भी जीते अगर पाकिस्तान जीत भी जाए बेस्ट केस सिनेरियो उनके लिए आई डोंट थिंक सो वो फोर्थ प्लेस पे फिनिश करेंगे यहाँ पे See, I think कि अभी if पाकिस्तान wins against न्यूजीलैंड कितने भी रन से चाहे जीते तो आई थिंक नेट रन रेट पे वो अफगानिस्तान से ऊपर आ सकता है राइट क्योंकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट स्टार्टिंग में बांग्लादेश के सामने हार के काफी नीचे हो गया था और बाकी आई थिंक टॉप ऑर्डर में एज यू सेड बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो खेल रहे हैं अभी तो ही एंड रिजवान रिजवान ठीक है स्टार्टिंग में खेल गए तो उनकी एवरेज अच्छी है लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी काफी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं तो ठीक है लाइक वी कांट स्टिल वी कैन नॉट थिंक कि पाकिस्तान बाहर है कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड ऑल्सो इसके बाद वाला जो फिक्सचर है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक दैट विल बी अ क्रूशियल गेम बिकॉज विल सी ऑस्ट्रेलिया हाउ ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म्स अगेंस्ट इंग्लैंड आई थिंक दे विन लेकिन जो नेट रन रेट होगा वो मैच का अगर वो न्यूजीलैंड जैसा 5 रन से जीत जाए या वैसा कुछ होगा देन देयर इज अ चांस कि ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाए साथ साथ देन देयर विल बी अ केस कि न्यूजीलैंड आ गया एंड अफगानिस्तान आ गया एंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बाहर है सो एज अ फैन एज अ क्रिकेटिंग फैन आई थिंक वो अंडरडॉग स्टोरी काफी अच्छी होगी जहां पे अफगानिस्तान आ जाता है इंडिया अफगानिस्तान का होता है तो इंडिया भी जीत जाएगा यू नो ये तो फेरी टेल है लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो कल का जो मेन फिक्सचर है न्यूजीलैंड पाकिस्तान तो आई थिंक इफ पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट शायद बैंगलोर में राइट आई एम नॉट श्योर बैंगलोर में ना हाँ, इट्स इन बैंगलोर। यस यस बैंगलोर में सो आई थिंक हुअर बैट्स फर्स्ट वहां पे विल हैव अ डिसेंट एडवांटेज ओवर द टीम क्योंकि दोनों का ओपनिंग इफ न्यूजीलैंड बैट्स फर्स्ट और उसका जो अगर अच्छा टोटल आ जाता है तो काफी दिक्कत होगी पाकिस्तान को चेस करने में या सी देखो इसमें क्या है ना, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत आपको पिछले 2-3 हफ्ते से हमने बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट दिया है वर्ल्ड कप का डिस्कशन एंड आगे भी इट विल कीप ऑन गोइंग। बट एनीवेज अब देखो एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज कंसर्न लास्ट वीडियो में भी हमने बहुत बात किया था, नथिंग हैज चेंज सिंस देन मच। थोड़ा बहुत भले लास्ट गेम उन्होंने जीता भी बट उनका जो अभी देख के मुझे लग रहा है ना कल का जो मैच है उनका टिकट मुझे लग रहा है कि कट सकता है फॉर नॉट फॉर द टॉप फोर बट लाहौर के लिए टिकट कट सकता है कल बिकॉज अब इसमें अब आप अगर आप देखोगे उनकी जो सबसे पहले फिर टॉक अबाउट द बैटिंग पहले भी हमने बोला है कि 80s की बैटिंग जो पहले ट्रेडिशनल बैटिंग होती थी वैसा थोड़ा बहुत देख के लगता था जितने टाइम तक इमाम उल हक बैटिंग कर रहा था moment they brought in Abdullah Shafiq he has not played 100 one day internationals right उसका डेब्यू ही यहीं पे हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कभी कुछ प्लानिंग ही नहीं थी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि दे और जो अभी भी तुम लोग ने भी बताया कि
उन लोग ने कभी बेंच प्रिपेयर ही नहीं किया। आपने कभी प्लेयर्स रेडी ही नहीं किए। प्लेयर्स क्यों नहीं रेडी किए? बिकॉज बाकी सब प्लेयर बहुत ठीक है, उसको एक चीज आप देख सकते हैं कि बाबर ने बैक किए प्लेयर्स को, बट दूसरे साइड में उसका रियल रिफ्लेक्शन ये है कि कोई सिक्योर नहीं है ना। आपकी टीम में कोई सिक्योर ही नहीं रहेगा तो आप जिम्बाब्वे भी आएंगे, अफगानिस्तान भी आएंगे, नेपाल भी आएंगे, सब आएंगे तो आप सब अपने कोर प्लेयर्स को ही खिलाओगे। तो वैसे तो नहीं होता है, राइट। और ये एक इशू है। बाबर आजम, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बाबर आजम आफ्टर दिस वर्ल्ड कप शुड लीव द कैप्टनसी। वो कहना क्या है, वो तो आई थिंक इट्स अ गिवन कि कैप्टनसी उसका छूटने ही वाला है। आई थिंक बाबर शुड प्ले एज अ बैट्समैन बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेट्स बी ऑनेस्ट। उसके इनिंग्स वगैरह आए हुए हैं इन द पास्ट, भले वर्ल्ड कप्स और बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं आए, बट आई रिमेंबर अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओनली 2019 वर्ल्ड कप में चेजिंग में एक बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस में उसने एक 100 बनाया था और पाकिस्तान को मैच जिताया था। बट अनफॉर्चुनेटली बस वही एक इनिंग है जो बड़े स्टेज पे आज तक आई हुई है, ठीक है। तो आई थिंक बाबर आजम नीड्स टू स्टेप अप। पिछले मैच में भी अगेंस्ट बांग्लादेश दैट दे व्हिच दे वन, दे हैड अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू गेट द नेट रन रेट इन पॉजिटिव। पूरा फ्लैश हो रहा था टीवी पे कि 30 ओवर्स में चेज कर दिया तो पॉजिटिव में चला जाएगा, बट बाबर आजम आगे क्या करते हैं? टुक टुक। नो, दिस टुक टुक गेम डज नॉट वर्क ना आज के टाइम पे। आपके जो मेन बैटर्स हैं फकर जमान, वो ऊपर से इतने लंबे लंबे सिक्स मार रहा है। 7 छक्के मार दिए उसने, 7 छक्के फकर जमान ने। पाकिस्तान का पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं था पूरे साल में। अब्दुल्ला शफीक ने पिछले मैच में मारा था एक छक्का। तो ऐसे नहीं हो सकता। इमाम उल हक से पूछा गया कि आप छक्के क्यों नहीं मारते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बोलते हैं कि हमें प्रोटीन नहीं मिलता इसलिए हम नहीं मारते। आई मीन ये क्या आंसर है? आई मीन आप बोलना क्या चाह रहे हो यहाँ पे? यू आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर ओन सेल्फ ना। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि उनकी बॉलिंग अटैक, जो जब तक नसीम शाह था तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जब तक नेपाल आ गया था, जब तक अफगानिस्तान आ गया था, तब तक बहुत अच्छा लग रहा था। कम द बिग स्टेज, कम द बिग टीम, 4 ओवर्स डालने में और 10 ओवर्स डालने में बहुत फर्क होता है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। T20 और वनडे 4 ओवर डालना, 10 ओवर डालना अलग, टोटल डिफरेंट स्किल होता है। 10 ओवर्स जब आप डालो, शाहीन अफरीदी ने यार लीडिंग विकेट टेकर इस टूर्नामेंट का, मुझे बताओ उसके इम्पैक्टफुल विकेट्स क्या है? कौन इम्पैक्टफुल विकेट था जो उसने लिया हो पावर प्ले में जाके शुरुआती में और टीम को उसने जिताया हो? यू कैन टेल मी दोज विकेट्स। मैं बुमराह का विकेट्स बताता हूँ, मैं शमी के विकेट्स बताता हूँ। शाहीन अफरीदी के नहीं है ना। उसने 5 विकेट अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने लिए, वो तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ये सबको आउट करके लिया उसने। तब तक जो वो लोग तो मार पीट के चले गए थे तुमको उस समय तक। तो उस 5 विकेट का क्या करूं मैं फिर? तो एट राइट टाइम पे आप विकेट नहीं ले पा रहे। और शाहीन अफरीदी इज अ गुड बॉलर, बट उसको कोई अकम्पनी नहीं कर पा रहा है। हारिस रॉफ को तो मैं आज तक, हारिस रॉफ को तो जब देखो वो मार ही खाते रहता है। वो उस दिन तो डेविड वार्नर, और उसने क्या मतलब बैंगलोर में मारा था, वो बॉल ऊपर लग के आया था वापस नीचे। तो आई थिंक उनके बॉलर्स भी वैसे क्लिक नहीं हो रहे हैं। और तीसरा लास्ट उसमें चीज यही है, आई थिंक पाकिस्तान का जो शुरुआत से इशू रहा है ना, एंड इट्स नॉट सिंस टुडे, इट्स सिंस फॉरएवर, वो हमेशा से ना ब्लेम गेम करते हैं। ये उसकी गलती है, ये इसकी गलती है। और वो उनका पूरा जिंदगी निकल गया इंडिया से compete करने में, कि इंडिया यहाँ पे हमको भी वही करना है, हमें भी उनको हराना है, हम इंडिया को हराएंगे। उनका लाइफ इसी में सेटल हो जाता है कि हम इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दें। दे आर नॉट हियर टू विन द वर्ल्ड कप। मतलब प्लेयर्स होंगे, बट उनका बाकी जो पूरा सेटअप का जो सोच है, दे जस्ट वांट टू बी लिटिल इंडिया। आपके उसके कोच आते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम डर गए थे कि हम रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हम घूम नहीं पा रहे थे, इसलिए हम हार गए वर्ल्ड कप। अरे मतलब आप घूमने नहीं आए हो और वो बोलते हैं कि हमको क्वारंटीन जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। क्वारंटीन जैसा फील हो रहा है यहाँ पे? आप घूमने आए हो या फिर आप क्या करने आए हो यहाँ पे? तो ये सब भी चीज है, हैव टू अंडरस्टैंड। अब मेरे घर का लाइट बल्ब बंद हो गया तो वो इसमें इंडिया की गलती है। वहां से कुछ वो उसको चोट लग गया, वो जमीन पे गिर गया, तो उसमें भी इंडिया की गलती है। ग्राउंड पे आप गाने नहीं लगा रहे हो पाकिस्तान के, तो उसमें भी इंडिया की गलती है। तो ये सब चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा है, बात वो है। तो ये सब ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया कि पाकिस्तान टॉप 4 में आ जाएगा। आई वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल, वही तो है मेन। मनी का सोर्स क्या है, एक्साइटमेंट का सोर्स क्या है? इट्स इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल। बट वी ऑल नो आज के टाइम पे पाकिस्तान का क्वालिटी नहीं है। और मे बी पाकिस्तान, जो मेरा इनिशियल क्वेश्चन यही था कि क्या पोटेंशियल पे वो खेले हैं, पोटेंशियल पे खेले हैं। पाकिस्तान हैज प्लेड टू द पोटेंशियल। T20 में ठीक है, वो 1-2 बार आपने आउट कर दिया रोहित शर्मा और विराट कोहली को, तो वो उससे आप बहुत बड़े नहीं बन जाते। कम द बिग स्टेज, आपको बिग स्टेज पे करना है। सेमीफाइनल आपको मैचेस जिताने हैं अपनी टीम को, जो बाबर हैज अनफॉर्चुनेटली फेल्ड टू डू। एंड आई वुड लाइक टू एंड विद दिस कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान के अगर 10 ओडीआई मैच होंगे तो उसमें 9 ओडीआई मैच इंडिया जीतेगी और 1 में बारिश हो जाएगी। तो ये उसमें से उसका बाद। तो ठीक है, तो
अगर कुछ और किसी को ऐड करना हो पाकिस्तान के बारे में तो दे कैन, अदरवाइज वी कैन। देवांशु, अगर कुछ पाकिस्तान के बारे में ऐड करना है तो फिर यू कैन, अदरवाइज तुम दोनों इसमें कुछ ऐड करना है। आई थिंक सो मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, नॉट मच बट या सी पाकिस्तान क्वालिटी टीम था, मैं अभी भी मानता हूँ पाकिस्तान इज अ क्वालिटी टीम, बट यू नो मेरे सोचा समथिंग नोन एज फॉर्म, आप हर बार तो अच्छे फॉर्म में होगी नहीं, हमने देखा है बड़े बड़े प्लेयर, विराट कोहली 4 साल तक पूरा डाउन हो गया था, एंड इनफैक्ट वो तो अच्छे फॉर्म में थे, बट पबजी कभी प्रेशराइज जो एक चीज बोलते हैं वो सब के चक्कर में वो उन्होंने खुद ने मेंटल ब्रेक लिया था, वैसी हर चीजें भी हुई है बड़े प्लेयर्स के साथ। आप हर बार नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि शाहिन शाह अफरीदी अच्छे परफॉर्म करें, इनफैक्ट मैं तो अभी बोलूंगा शाहिन शाह अफरीदी इज वेरी गुड बॉलर, देखा भी जाए तो उन्होंने के पर। और एक चीज थी वर्कलोड, वो तो हमने बोल ही दिया, बट शाहिन शाह अफरीदी खुद इंजरी के बाद आए, एशिया कप के बाद सीधा बॉलिंग कर रहे हैं। हैरिस श्रॉफ तो खैर कब तक ही विकेट हो गए, एक बार दो बार तीन बार, हर बार जाकर आपका साथ नहीं देगा, हर बार आपको विकेट नहीं मिलेगा, यू नीड टू ट्राई एंड थिंक समथिंग डिफरेंट, तो एक वो फैक्टर आ चुका है पाकिस्तान की टीम में। बाकी एक सबसे मेजर अननोटिस पॉइंट है स्पिन अटैक, क्वालिटी स्पिन अटैक नहीं हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, फुल टॉस शॉर्ट बॉल्स ये सब अगर आप डाल रहे हो तो स्पिन अटैक सॉरी नॉट हो। स्पिनर्स का तो है, आई थिंक स्पिनर्स हैज बीन एन इशू विद देम। अब शादाब, नवाज, उसामा मीर, अब बोल रहे हैं अबरार को वो लोग ला रहे हैं, सो कोई प्लानिंग नहीं है ना वहाँ पे, वो इशू है उनके साथ, बात तो है। बट ठीक है, हाँ तनिष, यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं, यही था कि पीपल लाइक नवाज, और दे वर सपोज टू एक्ट लाइक जडेजा, राइट? बट वो उनके पास उतना मैच भी नहीं है। जडेजा ने कितने ज्यादा ओडीआई खेल चुका है, वो कितने ज्यादा टेस्ट खेल चुका है। लेकिन इन लोगों को जो प्लानिंग करनी थी वो तो 3 साल पहले ही शुरू हो जानी चाहिए ना। ये बांग्लादेश जैसा कर रहा है अभी। बट यू कांट एक्सपेक्ट, पीसीबी इज आई थिंक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड का, and you expect something better than better from them as a you know as a board, क्योंकि it is not, see, maybe I'm wrong, maybe Pakistan goes on and goes to the semi-final, ठीक है, अच्छा कर सकते हो, लेकिन it doesn't seem like अभी वहां पे हम तो बहुत बैश करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है, मैंने क्रिकबज़ या कोई ऐप खोला था, उसमें आई सॉ एवरीबॉडी फ्रॉम वसीम अकरम टू एवरी मिसबा, एवरीबॉडी वाज बैशिंग, यू नो पूरा टीम, एंड नोबडी वाज बैशिंग बाबर एज सच, क्योंकि आई थिंक मे बी बाबर के पास इतना अभी ही हैजंट अर्न दैट राइट टीम में। कोई कैप्टन होता है जो जैसे जावेद मियांदाद है, वो खुद ही अपना पूरा बताता था, वो पहले से ही स्टार्टिंग से वो स्टार्टिंग 15 का जो लाइनअप जाता है वो पूरा वही खुद ही बताते थे। तो वो टाइप का जो वहां पे कंट्रोल जो मिलता है जो कैप्टन को, पहले हमने जैसा देखा है जैसे इंजाम उल हक को मिलता था, ये टाइप का अभी नहीं है। शाहिद अफरीदी थे बीच में कैप्टन, उनके पास भी काफी कंट्रोल था, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि बिहाइंड द सीन्स यू नो बाबर के पास ज्यादा कुछ कंट्रोल होगा। सो ओवरऑल कोई रेफरल लेते हैं तो इंडिया के लिए इट्स क्वाइट क्लियर, यू लुक एट द बॉलर, यू लुक एट राहुल, एंड इट इज डन। लाइक चार बंदे आके नहीं पूछते, रोहित ही डिसाइड करता है, राइट? एंड इट इज कॉमन इन एवरी टीम, बट व्हेन यू सी पाकिस्तान का कोई रिव्यू आ रहा है तो 8 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब। तो यू सी कि कितना उनका कोऑर्डिनेशन है, और इट हैज बीन अ रिजल्ट, क्योंकि टैलेंट है, बंदे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो अगर वो नहीं होगा, पूरे कॉमरेडरी नहीं होगी तो वो नहीं होगा। आई या थिंक सो ये सब पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया थी, बट अगेन थैंक यू तनिष फॉर ब्रिंगिंग आउट जो पूरा डेटा, एंड आई होप जो भी ऐसे हो पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, आई विश के आगे जाके अच्छा ही हो। मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, आई एम नॉट पर्सन के पूरी एक ही टीम को सपोर्ट करें, इवन इंडिया के फेवर में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, सबको पता है यहाँ पे। सो आई थिंक सो गुड टाइम है, आगे बढ़ते हैं। uh, अभी और भी पूरा टूर्नामेंट बाकी है, तो या लेट्स सी। सो यार देखो, पाकिस्तान का तो हमने देख लिया, बट मोस्ट प्रोबब्ली तो टॉप फोर में नहीं आएंगे, कंसिडरिंग द टू अदर टीम्स दैट कैन मेक इट टू द टॉप फोर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वेरी कॉन्ट्रास्टिंग जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था एंड जैसे अब वो लोग आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एकदम लो पे स्टार्ट किया, लगा कि क्या खेल रहा है, न्यूजीलैंड वाज एट द पीक,
कि कैसे वो लोग ने स्टार्ट किया, बट अब जैसे हम लोग मिडवे में अब आ गए, मिडवे अब एंड में ऑलमोस्ट आ गए, I think Australia has peaked at the perfect time and they are looking unstoppable. I think the only team that can give competition to India at the moment is Australia. And New Zealand, I think, with so many injuries, few players out of form, उनका भी ग्राफ नीचे ही जा रहा है. What do you think about these two teams? सो न्यूजीलैंड का तो पहले ही थोड़े दिनों पहले हमने ग्रुप पे भी डिस्कस किया था, कॉमन ग्रुप पे, कि ऑब्वियसली बॉलर्स में इंजरी रही है एंड इट्स बीन क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज सऊदी इतना लाइक मोर देन हाफ ऑफ टूर्नामेंट बाहर थे, अचानक से एक मैच अंदर आ रहे तो वो ऑब्वियसली नहीं परफॉर्म करेंगे, राइट? इवन हमने बुमराह की भी बात की थी, बुमराह को भी आयरलैंड सीरीज तक जाना पड़ा था एंड देन ऑब्वियसली वी कैन सी द रिजल्ट एंड व्हाटएवर, बट मैच प्रैक्टिस समथिंग वो लगती है एंड सऊदी को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई थी पहले। एंड देन टॉकिंग अबाउट फिर अब हेनरी इंजर्ड हो गए लास्ट मैच, जो एक्सपेक्टेड था विन रिजल्ट फॉर न्यूजीलैंड, वो बॉलिंग लाइनअप ही उनका वहाँ पर ही खत्म हो गया, हेनरी बाहर हो गए एंड डेथ ओवर्स में फिर ऑब्वियसली फिलिप्स डाल रहे थे ओवर्स, तो जस्ट फॉर लास्ट मैच मैं कहूंगा कि समवेयर अदर द इंजरी हैव इफेक्टेड द रिजल्ट, बट उससे पहले के मैचेस लाइक दे हैव लॉस्ट 3 इन अ रो राइट नाउ, तो 3 मैचेस में से ऑब्वियसली इंडिया वाला मैच इट वाज गोइंग गुड इन फेवर ऑफ देम, बट ऑब्वियसली डेथ ओवर्स में आते आते दे प्रमोट समथिंग एंड अगेन टोटल जो सेट हुआ था it can be defended. I have always said that 230, 280, जो भी anything above 200 can be defended in this league. We have seen it happen against Bangladesh and obviously in Africa's case. तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर लक का साथ नहीं मिला कि इवन थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन में मैच आ गया था, वहाँ से उनको और विकेट्स नहीं मिल पाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लक का साथ नहीं मिला। बट या मेजर इशू जो है वो तो मैंने मेंशन कर ही दिया था, आपके बैट्समैन कौन परफॉर्म करे। आधे मैचेस तो आपको कॉनवे निकाल के दे देते हैं पहले महीने में, फिर रचिन रविंद्र अब निकाल के दे रहे हैं, इन दोनों के अलावा कौन सा, ठीक है मानता हूँ डैरेल मिचेल ने भी परफॉर्म किया, नॉट लाइक दैट, बट इन 3 नाम के अलावा और कौन है जिन्होंने न्यूजीलैंड के बैटिंग में कंट्रीब्यूशन भी दिया। एंड या दैट हैज बीन द फैक्टर एंड ऑब्वियसली अभी न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन कुड प्ले टुमारोज मैच, so yeah, if they can open with Williamson and or even play him in middle order, that would provide some stability. बाकी काइल जेमिसन उन्होंने रिप्लेसमेंट दिलाया है फॉर बॉलिंग, देयर इज सर्टेन न्यूज, आई कैन नॉट कंफर्म दैट। एंड बाकी जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो शोहेब अख्तर ने ये कहा था कि अभी ऑस्ट्रेलिया हार रही है तो बाकी टीमें तैयार रहो, बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया सबको कच्चा चलाएगी, एंड वी सॉ दैट हैपनिंग बिकॉज तब तक आप डेविड वार्नर को रोकोगे, तब तक आप ऑस्ट्रेलिया के फियर्स अटैक को रोकोगे, राइट? एंड सरप्राइजिंगली एडम जैम्पा has stepped up for Australia, so that's a good thing कि एडम जैम्पा is contributing, बट ये अगले मैच में अब एक दिक्कत होगी कि एक ही स्पिनर होगा एडम जैम्पा, सेकंड स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल से ही इज आउट ड्यू टू अ फ्रीक इंजरी एंड दैट बीन समथिंग वेरी बैड इन केस ऑफ मैक्सवेल, राइट? कि पहले भी एक ऐसी फ्रीक इंजरी हुई थी एंड दिस इज द सेकंड टाइम वो ऐसा कुछ हो रहा है और जिसके चक्कर में बाहर हो रहे हैं, सो इट्स नॉट गुड फॉर हिम। बाकी मिचेल मार्श का रीजन इज अननोन, बट आई डोंट थिंक सो मिचेल मार्श के निकलने से कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ेगा उनके स्क्वाड के अंदर, कंसीडरिंग Travis Head is back, so for that and Cameron Green could be played at number 3, उनको ज़्यादा टाइम भी मिला कैमरन ग्रीन को, सो आई डोंट थिंक सो मिचेल मार्श का इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। रेस्ट या रिजल्ट्स अवेटेड होपफुली, एज आई सेड के टेबल अभी तक बहुत ज़्यादा खुला है, इवन द अंडरडॉग स्टोरी इज वर्किंग राइट नाउ अफगानिस्तान, सो ये टूर्नामेंट में अभी भी कुछ भी हो सकता है। आई एम फीलिंग अगेन के इवन अफगानिस्तान को रूल आउट करना अभी के टाइम पे इट्स नॉट गुड, जैसे आपसे क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आपके क्रिकेटर्स कितना एक्सपीरियंस है, राइट? एक बार आपको वो कॉन्फिडेंस मिल गया अंदर से, इट कैन हैपन, एंड वही ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया वो नीदरलैंड्स के मैच के बाद, दे हैव बीन अनस्टॉपेबल, सो या आई थिंक सो दीज आर माय पॉइंट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कोई बात करनी चाहिए। Tanish, go ahead. Yeah, so it seems like New Zealand is on a downhill, but if we compare India का न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का you know पीछे के matches, so Australia has lost 2 matches, which is India and South Africa.
New Zealand has lost 3 matches, which is India, South Africa, and 5 runs से from Australia. So yeah, even though it seems like एक टीम ऊपर जा रही है, एक टीम नीचे जा रही है, I think New Zealand is still on par, at par with Australia, and they can still, there's a chance कि वो, कि New Zealand can even come above, they can cement their place earlier than Australia because the way the fixtures are. So I think कल का match, uh, even though yeah, New Zealand are the favorites against Pakistan, तो जैसे ही कल का मैच होगा, विल गेट टू नो कि क्योंकि ओवरऑल नेट रन रेट में भी आई थिंक न्यूजीलैंड अभी रिसेंटली काफी डाउन चला गया, लेकिन इट इज क्वाइट ओके. सो इवन दो वो हार जाते एक आधा मैच, दे देयर वाज सिग्निफिकेंट चांस कि वो 4th प्लेस पे फिनिश करे. सो या, एंड ऑस्ट्रेलिया लाइक या, एज यू सेड कि शोएब अख्तर ने बोला कि या दे पीक एट द राइट टाइम मैन, एवरी टाइम. लाइक वो आई थिंक एक ही टूर्नामेंट थी तब वो अनबीटन रहे, बाकी उनके हर एक जर्नी में देयर हैज बीन सम अप्स एंड डाउन्स. और वो टीम यार बड़ी टीम है, देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री राइट. इट्स लाइक चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड खेल रही है, तो ह्यूज चांसेस कि वही आगे जाके फाइनल में दे आर द, यू नो द ऑड्स आर विद देम. तो इवन तो इंडिया भी खेले, तो वैसे केस में अगर फाइनल ऑस्ट्रेलिया आती है तो ह्यूज चांस कि ऑस्ट्रेलिया ही आगे आएगी. बट सेमीफाइनल में लेट्स सी कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, वी कैन सी अ मैचअप लाइक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, एंड मे बी 4th प्लेस पे क्या होता है आगे. बाकी यू गेव ऑल द स्क्वाड अपडेट्स एंड एवरीथिंग. सो या, आई थिंक मिचेल मार्श का ना होना इट विल बी ह्यूज थिंग, क्योंकि द वे ही प्लेज, तो डेविड वार्नर को भी थोड़ा आराम रहता है, एंड ही कैन एक्सीलरेट हिज इनिंग्स अकॉर्डिंगली थोड़ा. सो दैट विल बी अ हल्का सा इश्यू. बट बाकी वैसे वो वन डाउन भी खेलते हैं, तो ट्रेविस हेड आ गए तो मेजर इश्यू नहीं होगा अभी. या ऑस्ट्रेलिया का जब बात करते हैं ना, द मोमेंट ट्रेविस हेड जब वापस आया ना टीम में, एंड ट्रेविस हेड इज वन प्लेयर स्पेशली जो वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर्स पिछले कुछ सालों में. एशेज आप उसका देखो या जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह देखो, WTC फाइनल में भी 100 किया था. उस प्लेयर से ना डर लगता है. He is one player who can actually, who reminds me of those old Australian players, old Aussie attitude, जो 2000s वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में होता था, हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, वो टाइप का प्लेयर मुझे लगता है इस टीम में. वो टूर्नामेंट जिताने वाला जो प्लेयर होता है ना, वो दिख जाता है पहले. एंड ट्रेविस हेड हैज एक्चुअली evolved himself into that kind of player. आप WTC देखो, आप एशेज देखो, पहला WTC फाइनल मैच जिता दिया, टूर्नामेंट जिता दिया, पहला वर्ल्ड कप मैच जो 100 किया यार उसने उसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो बैटिंग किया, मैं उसका पूरा बैटिंग देखा, द वे ही डोमिनेटेड दोस बॉलर्स. इट्स नॉट इजी. आपके पास जब तक वो फियरलेस एटीट्यूड नहीं होगा ना, यू वोंट टेक चार्ज अगेंस्ट बॉलर्स लाइक हेनरी, बोल्ट, ये सब बहुत बड़े बॉलर्स हैं. दीज आर नॉट स्मॉल बॉलर्स. आप उसको स्टेप आउट करके बाहर मार रहे हो ग्राउंड के, वो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस ही वहां पे खत्म हो गया. मैट हेनरी मैं अभी बोल रहा हूँ, ही वुड नॉट बी द सेम आफ्टर दैट. देखिए नो, ईजी नहीं होता है फास्ट बॉलर्स के लिए. तो आई थिंक ट्रेविस हेड इज वन बॉलर हु कैन एक्चुअली टेक ऑन द इंडियन बॉलर्स आल्सो. चाहे हम जितना भी इंडियन बॉलिंग के बारे में तारीफ किया है, बट ट्रेविस हेड इज वन प्लेयर, और डेविड वार्नर तो है ही. तो उनका ना टॉप ऑर्डर बहुत सॉर्टेड लगता है. ठीक है, मिचेल मार्श हैड टू गो बैक ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसीज, जो भी हो, एंड ही सेड टू Marcus Stoinis that he's coming back to win the World Cup, something like that. So we'll see what happens. But as long as tomorrow goes, kal to I think it will be a cakewalk for Australia because England has not been England. बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो यार वो तो है ही. उनकी बॉलिंग अटैक भी आई थिंक सेकंड बेस्ट बॉलिंग अटैक इस टूर्नामेंट की. एडम जैम्पा, अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड, आई थिंक एडम जैम्पा ने जो कमबैक किया है ना, जो हर मैच में 4 विकेट्स, I think he has been the top performer, and I think the best spinner alongside Kuldeep Yadav has been Adam Zampa. तो ऑस्ट्रेलिया तो एक थ्रेट रहेगा ही, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिल फिनिश अप एट थर्ड पोजीशन जितना मुझे लग रहा है. एंड वी यू नेवर नो, वी माइट सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल आल्सो. Coming to New Zealand, New Zealand has always been very interesting. I think people have always rated New Zealand very high because they have amazing players, of course. थोड़ा underrated रहे. But I think the moment I think you guys said Kane Williamson is coming back. Is it confirmed that he's coming back for tomorrow's game? It is expected, but यही बोला गया है कि most likely. I don't know क्या है because official statement कोई अभी तक आया नहीं है. But ICC released the footage के नेट्स में तो बैटिंग कर ही रहे हैं. Hmm. Rest
न्यूजीलैंड का मसीहा, देखते हैं बचाएगा या डुबाएगा। सी यू विल नीड केन विलियमसन फॉर बिग मैचेस। आप अगर सोच रहे हो कि रचिन रविंद्र आपको टूर्नामेंट जिता देगा तो वो शायद नहीं होगा। ही इज वेरी यंग प्लेयर। फाइनल सेमीफाइनल्स में ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो केन विलियमसन के पास है, बिकॉज दे डोंट इवन हैव रॉस टेलर एंड उनके ओपनर थोड़े हल्के मुझे लग रहे हैं। आई थिंक डेवन कॉनवे इज अ बिग नेम, उसने 100 भी किया पिछले मैच में, बट उसके बाद तो कुछ नहीं किया। एंड विल यंग थोड़ा सा वीकलिंग लगता है मुझे उस टीम में, आई थिंक एज एन ओपनर। एंड आप उसकी पूरी बैटिंग देखो, चल नहीं रहा है कोई। डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्र के अलावा उनकी बैटिंग रन नहीं कर रही है। जिमी नीशम ने भी ठीक है, वो 390 वाला जो स्कोर था, दे डिड वेल। आप ग्लेन फिलिप्स का भी बोलोगे 60 रन तो है ही, बट वो सब रन नहीं है ना, मतलब ठीक है। तो वही है, और उनकी बॉलिंग भी उससे उस तरीके से क्लिक नहीं हुई है। आप इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देखो, रोहित शर्मा ने बाहर निकल निकल के मारा था मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट को, तो वो मैच में भी दोनों लगे नहीं थे वैसा। ट्रेंट बोल्ट ने हालांकि पिछले मैच में अच्छा किया, लेकिन उनकी बॉलिंग भी एज ए यूनिट क्लिक नहीं हो रही है। सैंडर भी अच्छा कर रहा था, बट अगेन पैचेस में ही हो रहा था। तो लेट्स सी। एंड न्यूजीलैंड का क्या इशू रहा है ना, दे हैव लॉस्ट टू टीम्स अबव देम। थ्री टीम्स, ऑल द थ्री टीम्स अबव देम, दे हैव लॉस्ट टू देम। उन्होंने जो भी शुरुआत के मैचेस खेले थे वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन लोग श्रीलंका के साथ तो खेलेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन लोग को हराया था। ठीक है, इंग्लैंड को एक बहुत बड़े मार्जिन से आपने पीटा था, वो तो एक बहुत अच्छा था। तो आई थिंक वो बिग टीम्स, न्यूजीलैंड आल्सो हैज टू बी। न्यूजीलैंड क्या रहता है ना, 2019 वर्ल्ड कप में भी दे मेड इट टू द टॉप 4 ऑन द बेसिस ऑफ नेट रन रेट। पाकिस्तान के साथ वहां पे भी क्लैश हुआ था, जो इस बार हो रहा है। हालांकि इस बार भी वही होगा, दे मेक इट टू द टॉप 4, उसमें तो कोई ये इशू नहीं आने वाला है। बट विद द गिवन द अमाउंट ऑफ इंजरीज दैट दे हैव, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनका। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट इट? लास्ट पॉइंट तो वही होगा, अगर एक काई जेमिसन इफ ही प्लेज इन दैट इलेवन, फ्रेश बॉलर आएंगे तो देखते हैं व्हाट इम्पैक्ट ही कैन ब्रिंग, बिकॉज काई जेमिसन अगेन इंडिया के खिलाफ स्पेशली WTC डिसअपॉइंटमेंट के अंदर उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। एंड बाकी वी नो के ही कैन स्विंग द बॉल, तो देखते हैं। बॉलिंग लाइनअप देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज अगेन कौन, बिकॉज फर्ग्यूसन भी इंजर्ड है, नीशम भी इंजर्ड है, एंड सऊदी मैच इतना मिले नहीं उनको खेलने के लिए। So it will be interesting. देखते हैं if Ty Jamieson के rumors सच है and if he fits in that 11. So it would be interesting to see if Williamson and Jamieson comes in. या सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉप 4, और मोस्ट प्रोबब्ली यही 4 टीम रहने वाले, यही ऑर्डर में भी रहने वाले। लास्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक हम लोग ये डिस्कस करेंगे एज अ यूनिट of the 4 teams, the 6 teams that are at the bottom. Let's first talk about the Asian teams. सबको एक साथ ही comprise करते हैं. For me, Asian teams have been very disappointing. All the Asian teams have been very very disappointing. पाकिस्तान के बारे में तो बात कर ही लिया. What do you guys think about Afghanistan? I think has been the second best Asian team इस tournament में. अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में what do you guys think? Tanish, go ahead. Yeah, so Afghanistan are the underdogs right now, and I really hope कि वो टीम आए ताकि the country is going through rough stage जो भी चल रहा है, तो it's just a second. Yeah. So whatever's going on in the country and overall it's been quite huge for Afghanistan the way they have been playing right now. So but I'm disappointed with Bangladesh again behind the scenes. क्या हो गया वहां पे पता नहीं चला, तमिम इकबाल आ रहे थे और क्या हो गया, because he was at ranking जो भी हो, but you he has been a player कि पिछले 10 साल में he's always been among the top 5 से हल्का सा बाहर, but वो बांग्लादेश की टीम है तो वी डू नॉट कंसिडर हिम सो हाई, बट वो इट वाज अ ह्यूज मिस। और बाकी श्रीलंका हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, द यू नो आई रियली लाइक दैट बॉलर मधुशंका, द यू आर टॉकिंग अबाउट शाहीन अफरीदी नॉट टेकिंग गुड विकेट्स, जो इंपॉर्टेंट विकेट्स है। कल मधुशंका ने गिल, रोहित, विराट, अय्यर एंड राहुल, पांचों की विकेट ले ली, एंड आई थिंक ही इज राइट नाउ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। सो बॉलिंग वाइज श्रीलंका हैज बीन रियली गुड, बट बैटिंग वाइज अगेन स्टार्टिंग में कुशल परेरा वाज प्लेइंग, आई थिंक कुशल मेंडिस और परेरा, आई एम नॉट श्योर, उसने 120 से वो Mendes. मेंडिस, या द कीपर, राइट। So the way he played in the beginning was really good. I was, मैं पहला मैच का मैंने स्कोर देखा, I missed the first match against South Africa, but the next match मैंने जब वो I was looking for, कि क्या खेल रहा है अभी,
क्योंकि मैंने उसको काफी टाइम से देखा नहीं था एंड द वे ही वाज प्लेइंग इट वाज सो एग्रेसिव, इट वाज रियली गुड। बट यही है कि जैसे ही टूर्नामेंट प्रोग्रेस होता गया, वी सॉ द फॉल ऑफ दीज एशियन टीम्स, राइट? पाकिस्तान टू इन द बिगिनिंग वाज क्वाइट गुड until the India match, they were going decent. बट फिर नो मोमेंटम और जो भी टीमों को हराया, जो बड़ी एशिया की जो बड़ी टीम्स है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? तो ये टीमों ने एशिया की ही टीमों को हराया एट द एंड। वो ठीक है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हार गई, बट बाकी यू नो अदरवाइज जो बाकी कंट्रीज है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके सामने इट इज, आई डो नॉट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश और इवन अफगानिस्तान टू, it's a mismatch, right? Because the number of matches that these countries play is quite less compared to a India or a Pakistan. Yeah. So सो जो मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है इस मामले में। अफगानिस्तान में तो मैं पहले वर्स्ट केस सिनेरियो से बात करता हूँ। लाइक टीम्स विच आर लाइक मेरे ओपिनियन में एशिया की जहाँ तक बात की, बांग्लादेश हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं इवन लंका का भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोलूंगा, आई विल कम बैक टू इट। बट बांग्लादेश coming back, I've always said Bangladesh का batting बहुत deep है. They have defeated India in their own country, like I mean in Bangladesh, local India, and they bat well. And even जो पुणे वाला मैच था और right, we saw that they were all over us until some shackles happened. बट या बांग्लादेश की जहाँ तक बात की जाए तो बॉलिंग हैजंट वेरी गुड। बैटिंग तो खैर एक कॉमन वीकनेस रही है सबकी, शॉर्ट बॉल, एंड एवरीवन बाकी जिनसे भी हारे उन्होंने प्रॉपर यूज किया। एंड शाकिब अल हसन, टॉकिंग अबाउट ऑलराउंडर्स, तो शाकिब अल हसन से जो बैटिंग एक्सपेक्ट की गई थी एज एक्सपीरियंस कैंपेनर, वो आई नहीं उनकी तरफ से। एंड वी ऑल्सो सॉ के नेदरलैंड्स के मैच के पहले वो वापस बांग्लादेश गए थे एक दो दिन के लिए अपने जो भी उनके उन्होंने काइंड ऑफ कोच से प्रैक्टिस करना, एंड फॉर दैट नेदरलैंड्स क्लैश एंड स्पेशली बैटिंग के लिए जो हमें सुनने को मिला था। सो बांग्लादेश या हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी बात की जाए लंका की, सो लंका फाइनेंशियल क्राइसिस वजह से इतने मैचेस खेल नहीं पाया था। एंड इन क्वालिफायर जो स्कोर लंका को होना चाहिए था, वॉट एवर द प्लान फॉर दिस वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली वो जा ही नहीं पाए वर्ल्ड कप के अंदर ड्यू टू इंजरी। हसारंगा आउट, तीक्षणा अगेन कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी जो भी एशिया कप में हुआ था। अरे आप वो छोड़ो, कैप्टन ही इंजर्ड हो गए उनके, रसूल शना था, वो भी इंजर्ड हो गए यहाँ तक। एंड देन Lairu Kumara, their premier fast bowler that zip he gets and the swing he gets, वो वापस से इंजरी के बाद आए, वर्ल्ड कप के दो मैच खेले, फिर से इंजर्ड हो गए, फिर से चले गए। तो वहाँ पर भी फिर एक काइंड ऑफ माइंडसेट ही खत्म हो जाता है टीम का। जो आपने प्लान किया था वो अनफॉर्चुनेटली लक आपके फेवर में था, वॉट एवर यू कैन से, वो टीम जा ही नहीं पाई वहाँ पर। हाँ, वीक पॉइंट्स है। तीक्षणा से जो बॉलिंग एक्सपेक्ट की गई थी एज अ स्पिनर कि वो जितने विकेट्स लेंगे, वो उन्होंने किया ही नहीं अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। तीक्षणा को जो मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में देखा था, ही वाज लिटरली डिमोलिशिंग अदर टीम्स इन दैट टूर्नामेंट। इधर वो इफेक्ट उनका आ ही नहीं रहा। देन ऑब्वियसली हसरंगा के साथ टैंडम में नहीं होना भी एक रीजन हो सकता है, बट इफ सच थिंग्स आर हैपनिंग तो किसी ना किसी स्टेप अप करना ही पड़ता है। आई थिंक सो बिग पॉजिटिव इज एंजेलो मैथ्यूज, ही हैज बीन द प्लेयर अभी जो जितने भी तीन मैच उन्होंने खेले, ही इज डूइंग वेल। बट या ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाटएवर इट इज, श्रीलंका आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई चांस बनता है। बाकी अफगानिस्तान हैज रियली वर्कड वेल इन दिस टूर्नामेंट, राइट? अभी 8 पॉइंट्स पे कंफर्टेबली बैठे हैं वो लोग। दे आर लिटरली चैलेंजिंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट टॉप 4 का स्पॉट। एंड व्हाट स्मार्ट अबाउट अफगानिस्तान टीम इज कि उनके प्लेयर्स वीक खेलते हैं, इवन बैट्समैन, नॉट लाइक खाली रशीद खान या दो चार लोग, ऑल राउंडर वर्ल्ड बांग्लादेश प्रीमियर लीग तक खेलते हैं। सो फ्रॉम देयर दे हैव रियली पिक्ड अप दैट एक्सपीरियंस एंड द स्क्वाड दे टेक लाइक इन एवरी मैच। बैटिंग तो अच्छी है ही, जो बैटिंग का बाकी लाइक लोअर रैंक टीम्स का होता है इशू के बॉलिंग क्लिक्स वेल बट बैटिंग नहीं हो पाती है। अफगानिस्तान हैज रियली फिक्स्ड दैट इशू इन दिस वर्ल्ड कप, सो दैट्स अ रियली बिग पॉजिटिव। बाकी बॉलिंग अटैक भी उनके जो स्पिनर्स की क्वालिटी है, राइट? एक स्पिनर आपका पावर प्ले में डाल सकता है, एक स्पिनर आपका देन स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट आर्म का यूज कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नबी एंड देन ऑब्वियसली रशीद खान तो ही आपके पास प्रीमियर बॉलर ऑफ अफगानिस्तान। मेन थिंग इज जो बैटिंग अफगानिस्तान के टूर्नामेंट में रही,
after obviously coming off the starting के जो भी losses रहे उनके, I think so two loss or one loss, I don't remember. But yeah, batting exceptionally well for Afghanistan. So I don't think so अफगानिस्तान को disappointing बोला जा सकता है. Only आगे क्या होता है result will determine. And I wish कि वो top 4 में खत्म करे. So it will be really uplifting for not only Afghanistan but the whole cricketing community around us. नहीं, सही बात है. When you talk about Asian teams, I think Bangladesh over the years has been the most disappointing. बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है भाई, बहुत. बांग्लादेश, अब इंग्लैंड को छोड़ दो, इस टूर्नामेंट में सबसे खराब क्रिकेट, सबसे बेकार क्रिकेट बांग्लादेश ने खेला. लेट्स बी ऑनेस्ट. उनके प्लेयर्स के जो ड्रामा कभी खत्म नहीं होते. शाकिब अल हसन होंगे बहुत बड़े लेजेंड, बट फॉर मी आई थिंक एक क्रिकेटर को आप बस एक रन और विकेट्स पे जज नहीं करते हो. इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, एंड आई थिंक शाकिब हैज फेल्ड इन दैट. वो आप जानते हो, बीच टूर्नामेंट में वो अपने कोच से मिलने चले गए बांग्लादेश में. क्या जरूरत था उस चीज का? आप अपने टूर्नामेंट के बीच में अपनी टीम को कैसे छोड़ के जा सकते हो? तो बात वो है. वो बहुत सारी चीजें हैं. तमीम इकबाल के साथ ड्रामा हो गया शुरू में, तो बहुत सारे इश्यूज हैं. आपके मोहम्मदुल्लाह को आपने शुरुआत से खिलाया नहीं था, वो खिला भी लेते तो पता नहीं क्या हो जाता. तो बांग्लादेश को ना आई थिंक वो इनर इश्यूज बहुत सारे, एंड दे हैव बीन स्टैग्नेंट. वो लोग ने कभी इंप्रूव नहीं किया अपने आप को पिछले सालों में. उनका ग्राफ हमेशा वो ऐसे ही रहा है, अब गिर भी रहा है वैसे. अफगानिस्तान आई थिंक इज राइजिंग अप. तो उनके बारे में तो डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है अब बांग्लादेश के बारे में. एज फार एज अफगानिस्तान गोस, आई थिंक इंडियन कंडीशंस बहुत सूट किया उनको. आई थिंक आप ये अगर देखोगे कि राशिद खान, मोहम्मद नबी, इनका कोई बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बट फिर भी जीत रहे हैं वो लोग. क्यों? बिकॉज देयर बैट्समैन आर रिस्पॉन्डिंग. उनके बैट्समैन एक्चुअली, रहमत शाह जो नंबर 3 पे खेला है, मैंने भी आज उसका बैटिंग देखा, पिछले मैच में भी देखा था. ही इज रियली गुड. आप जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे कैन स्टेप अप. तो आई थिंक अफगानिस्तान डेफिनेटली नाउ इन द अपकमिंग इयर्स, आई थिंक अफगानिस्तान और नेपाल, ये दो ऐसी टीम रहेंगे जो एशिया में जरूर राइज करेंगे. और बाकी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बाकी जितने भी टीम्स हैं उनका डाउनफॉल ही होने वाला है. बीट पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी डाउनफॉल पे ही चल रही है. वो भले वो लोगों ने बीच में थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेला था, 1 साल का फेज था पिछला साल, बट क्या, आप तो इंडिया में खेल रहे हो वर्ल्ड कप. यू शुड हैव बीन एबल टू अडैप्ट टू दिस कंडीशंस एंड परफॉर्म वेल. तो ऐसे नहीं हो सकता. आप 345 पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा, वहां पे भी आप चेज नहीं कर, आप डिफेंड नहीं कर पाए 345 को. आप 55 पे फिर ऑल आउट भी हो गए एक मैच में, पिछले मैच में. तो आप कोई बैलेंस नहीं है ना. वही है. तो अब श्रीलंका के पास भी आई थिंक डाउनफॉल सिंस 2014 2015 हैज बीन वेरी वेरी सैड टू सी. तो ये सब है, आप क्या कर सकते हो. एंड ठीक है, एनीथिंग इफ यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट द एशियन टीम्स, अदरवाइज वी कैन जस्ट discuss last thing about the last team. No, I don't think so. If Kanishk, if you have anything, so you can go ahead. That we made also. Not really. लास्ट में बस यही है, जो लास्ट पोजीशन है, आई थिंक वही बहुत फालतू रूल मुझे थोड़ा लगा कि ये टॉप 8 टीम्स कोई चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे वर्ल्ड कप के रैंकिंग्स में. आई थिंक दिस हैज टू बी द मोस्ट स्टूपिड रूल दैट आई एवर कम अक्रॉस. इसका कोई मतलब नहीं है. ये सब उस टाइप के स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है जहाँ पे वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम्स खेल रही हूँ. यहाँ पे व्हेन यू नो कि यही टीम है जो जाने वाले. अब इंग्लैंड के बिना आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे 2025? ठीक है, मैं मानता हूँ इंग्लैंड हैज बीन पैथेटिक दिस टूर्नामेंट, कोई एक्सक्यूज ही नहीं. बांग्लादेश को जितना भी बोले, इंग्लैंड ने भी कुछ बहुत झंडे नहीं गाड़े. एक ही क्वेश्चन है मेरा, विल स्टार्ट विद हरजस. व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड? See, न्यूजीलैंड का पहली बात तो प्रेशर बहुत ज्यादा था from all rounder community, right? The defending champion, you have the legendary Ben Stokes with you going back into the World Cup. Then obviously I don't think so. एक और फैक्टर रहा है, बेचारे जेसन रॉय ने आपका क्या बिगाड़ा. उस बेचारे ने ऐसी क्या गलती की, जब भी किसी को लात मारने की बारी आती है जेसन रॉय को दरवाजा दिखा दिया जाता है, चल भाई निकल जैसे. एंड या दैट हैज बीन इफेक्टेड. दैट इज आई थिंक सो विजिबल उनके बैटिंग के अंदर. लाइक बैटिंग इंग्लैंड का चल ही नहीं रहा है. बॉलर्स ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट दे बॉल्ड प्रीटी वेल. एंड मेन थिंग इज प्रेशर. पहला और आखिरी पॉइंट में वही बोलूंगा कि पहला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ 282, नॉट अ बैड टोटल. बट आजू बाजू के लोगों ने उसको ऐसा दिखा दिया कि इंग्लैंड फेल्ड टू इवन स्कोर 300. उनके पास बेंच स्टोक्स थे, ये था वो था जो भी था. बट 282 प्रीटी मच डिफेंडेबल टोटल था. एंड कहीं ना कहीं फिर वही मोमेंटम छूट गया. एंड देन सेकंड मैच में ठीक है, धर्मशाला के अंदर बांग्लादेश को अच्छा हराया. पर उसके बाद से आई डोंट थिंक सो. एक और मैच हारने के बाद फिर से क्वेश्चन उठने चालू हो गए अफगानिस्तान वाला, क्या इंग्लैंड सच में यही है. लाइक
आपने जो आपका कॉम्बिनेशन सोचा था ऑलराउंडर से, जो हमने डिस्कस भी किया कि इंग्लैंड बैट कितनी डीप, सारे मुस्टंडे भरे हुए उन्होंने टीम में कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। आपने वो अपना कॉम्बिनेशन का ट्रस्ट ही छोड़ दिया एक पॉइंट पे आके कि सैम करन को आपने बाहर कर दिया, फिर जो भी और ऑलराउंडर्स थे आपने उनको बाहर कर दिया, फिर आपने पूरा नया लाइनअप अंदर लाया, डेविड विली इन सबको अंदर भेजा, वो भी नहीं चला, फिर से आपने गाली खाई। और आप इस गाली के बाद आप वापस से चेंजेस नहीं कर सकते ना कि कितनी बार आप बोलोगे हाँ हमको ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, वो भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर वही स्क्वाड मेंटेन किया एंड वो स्क्वाड टेम्पलेट चल नहीं रहा उनके, एंड आई डोंट थिंक सो आगे भी काम करेगा। आई थिंक सो चैंपियंस ट्रॉफी का क्वालिफाई वाला मैच कौन सा होगा? इंग्लैंड नेदरलैंड्स जो जीता चैंपियंस ट्रॉफी को क्वालिफाई कर जाएगा। या समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू वो मैच में। तो टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, तो या जब ऑन पेपर जब हम स्क्वाड्स देख रहे थे, सो इंडिया के साथ साथ और इंडिया से बेटर भी काफी लोग रेट कर रहे थे इंग्लैंड को, लाइक इट वाज फुल ऑफ ऑलराउंडर्स एंड वी वंडर व्हाई दे ओनली दे डिडंट गो विद ऑलराउंडर्स। उन्होंने सोचा कि बैटिंग कराओ और बैट्समैन को लो और बॉलर को लो। एंड इसमें बहुत सारे रीजंस भी है कि उनका जो प्रेशर है अभी, लाइक यू सेड कि ऑन मॉर्गन और बटलर ने पूरा रेवोल्यूशनाइज करा ये टीम को। एंड दे वेंट ऑन टू विन 2019 का और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी। लेकिन अभी जो प्लेयर्स है इट इज फुल ऑफ सुपरस्टार्स, राइट? ये पूरे टाइम T20 खेलते रहता है नॉर्मली, क्योंकि फ्रॉम बेस्टो टू स्टोक्स और बाकी तुम नीचे जाओ, सारे प्लेयर्स T20 खेलते हैं। मोइन अली, और सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब पाकिस्तान में खेलेंगे, साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। तो ओवरऑल इफ यू लुक एट द कैलेंडर, इट इज फुल ऑफ T20s एंड ओवरऑल द फोकस हैज बीन ऑन टेस्ट। द टेस्ट टीम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम दिस टीम, बट द T20 टीम लुक्स क्वाइट सिमिलर टू ये वाली टीम। तो आई डोंट नो कि अगर हम इंडिया की भी बात करें, तो अगर हम T20 वर्ल्ड कप को कंपेयर करें तो काफी डिफरेंस है हमारा, जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप था और अभी का जो ODI का 15 का टीम है वो। लाइक इफ वी नीड टू चेक कि एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है, बिकॉज ओवरऑल जो टेस्ट टीम होती है उनके पूरा अलग होता है। और एज यू सेड कि जेसन रॉय को क्यों निकाला, आई मीन वहां पे टू, आई डोंट नो, लेना चाहिए था उसको, क्योंकि वो हर 5 मैच में आपको 3 बारी आपको अच्छा स्टार्ट देगा, मिनिमम 3 बारी। ही हैज बीन लाइक अ रोहित शर्मा फिगर फॉर दैट टीम। He goes out and bats his heart out, and maybe he gets out once in a while, but overall he gives a great start to the team. And I do not think कि बाकी ये अभी हो रहा है इनके साथ। इवन दो डेविड मलान ने बीच में वो 140 मारा था स्टार्टिंग में, इट वाज अ गुड साइन, बट द फॉर्म हैज नॉट बीन द सेम। तो काफी प्रॉब्लम्स है, और उनका बॉलिंग लाइनअप भी काफी मीडिया कर रहा है। जो हमने एक्सपेक्ट करा था वो इंडियन कंडीशंस में वो नहीं कर पाए ओवरऑल। सो या इवन एक और चीज है, आदिल रशीद के साथ हमारी काफी एक्सपेक्टेशन थी कि वो हिल वर्क एज अ जैम्पा, जो इम्पैक्ट ला रहे वो वहां से लाए, और वो सब पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो काफी स्पिनर्स का रोल काफी क्रूशियल था, और इंग्लैंड हर सारे टिक बॉक्सेस जो होने चाहिए, हर में वो एक भी टिक बॉक्स नहीं है। तो इवन दो ऑन पेपर दे लुक लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, वो नहीं हो रहा था। या इवन दो वी टॉक अबाउट बॉलर्स ओवर, बट बैटिंग इज द मेन इशू, राइट? आपने हैरी ब्रूक को एक परफॉर्मेंस के ऊपर उठा दिया कि ठीक है उस बंदे ने एक मैच अच्छा खेला, तो ओके जेसन रॉय बाय बाय। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जेसन रॉय का जो T20 वर्ल्ड कप से पहले वाला फॉर्म रहा था जब आपने एलेक्स हेल्स को किया वो अच्छा नहीं था। दैट वाज द राइट थिंग कि आपने एलेक्स हेल्स को डाला बिकॉज ही वाज स्कोरिंग कॉन्स्टेंटली इन लीग्स एंड वेरेवर ही प्ले, एंड दैट वर्क फॉर देम। बट अभी जेसन रॉय को निकालने का कोई रीजन था नहीं। एंड बेन स्टोक्स को आपने एक सीरीज के ऊपर जज कर दिया कि ठीक है बेन स्टोक्स बैटिंग अभी भी अच्छी कर रहे हैं, उनको ले जा सकते हैं। बट वही बात है कि इनफ क्रिकेट खेली है बेन स्टोक्स ने ODI की, उससे पहले के ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में दिखाए उन्होंने। बट 4 साल के गैप में उन्होंने एक मैच खेला, एक मैच में तो 180 आपने मारा, गुड थिंग है। बट वो एक मैच के बेस पे वर्ल्ड कप के अंदर डाल देना किसी को, इज इट रियली जस्टिफाइबल? एंड ऑब्वियसली जो रूट एंड ऑल अदर बैट्समैन दे हैवंट रियली स्टेप्ड अप, लियाम लिविंगस्टन, जो रूट जिनसे एक्सपेक्टेशन था, तो बैटिंग ही नहीं चल रही है। बॉलर्स क्या ही कर लेंगे, बॉलर्स ने तो पहले प्रूव ही किया टाइम टू टाइम इंडिया के अगेंस्ट। इवन बेचारे मार्क वुड और आदिल रशीद ने अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट में मैच जिताने की कोशिश की है बैट से। और आपको क्या चाहिए आपके बॉलर से? तो यार यही एक रहा, बैटिंग क्लिक कोई नहीं है, एंड देन उसके चक्कर में आपने बॉलिंग चेंज कर दिया। और बॉलिंग फिर अभी
क्या बोले हम, बेसिकली कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनका कि हाथ किधर है पाँव किधर है, अभी वैसा सिचुएशन में है। यस, लॉट्स ऑफ इश्यूज। पता नहीं है, आई थिंक उनको भी एक झटका ही लगा होगा इंग्लैंड को। उनको भी पता नहीं है कि क्या हुआ है, तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा रियलाइज होने में। बट आई थिंक, हाँ, आई थिंक दिस इज इट। मेरे साइड से तो बस जितने भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग दिस टॉप फोर एंड ऑल द अदर टीम्स सो फार, इफ यू गाइस हैव एनीथिंग टू ऐड regarding anything, go ahead. Otherwise, we can wrap up. Any final बस comments? लास्ट चीज़ एक बोलना चाहूँगा, जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे में हमने बात की फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक सो ये जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो निकाला इसी से कहीं ना कहीं ये फेयर है, बिकॉज एज वी सेड के ओडीआई क्रिकेट जब हो ही नहीं रहा है, अब रैंकिंग कैसे डिसाइड करेगा, राइट? इवन एसोसिएट टीम जो क्वालिफायर खेल खेल के आती है, उनको तो बेचारों को मैचेस मिलते ही नहीं है। लाइक कभी हमने देखा नेदरलैंड की टीम एग्जिस्ट करती है, दे कैन, साउथ अफ्रीका कौन सी टीम से हारी है? एक ही मैच हारा साउथ अफ्रीका, जिनको हमने चढ़ा के रखा है इतना, 14 नेदरलैंड। तो देयर आर रियली अदर टीम जिसका पोटेंशियल है एंड क्वालिफाई कर करके आती है, एंड दे डोंट रियली गेट अदर मैचेस। इवन यही जो टेबल उसमें से देखिए, राइट? अफगानिस्तान plays much cricket like other Asian teams, even from Bangladesh and whatever. लंका तो खैर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे कहीं ना कहीं, बट उसके अलावा कौन इतनी ओडीआई क्रिकेट खेलेगा? तो पुरानी रैंकिंग्स पे किसी को चैंपियंस ट्रॉफी खिलाना इन दैट 2 years के पीरियड में, इट वाज नॉट वेरी जस्टिफाइबल, क्योंकि हमें पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद भी T20 गेम्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ यूएसए 2024 T20 वर्ल्ड। तो आई थिंक सो इट्स जस्टिफाइबल जो भी आईसीसी ने रखा है कि टॉप 7 या टॉप 8 जाएगा इसमें। Tanish, anything you would like to add? No man, like yeah, abhi I'm really excited ki how this table finishes right now. So there's one camp ki Australia and New Zealand aayega. I think there will be a single change. It can be, it can go anywhere. Like New Zealand can qualify and Australia can go out. Or I'm just hoping ki, we can see underdog like Afghanistan and even Pakistan, considering their performance, they are an underdog in this scenario. But not taking anything away from them, like they still have a good chance. Like जो आने वाले जो 4 fixtures है, that will be really crucial for us. Even India versus South Africa का match is going to be a huge one because just in case if India drops 2 points on South Africa, then on it will be on net run rate, and maybe India will face a third place team in this scenario. So आने वाले 4 मैचेस बहुत ह्यूज होंगे. One final question to all of you before we can wrap up. Who is lifting the cup on 19th November? I think so. It will be your Temba Bavuma coming up with a trophy bigger than his son. I'm not gonna say it like, yeah, let's see. And fingers crossed. Let's see. चलो, सही है. Keeping your cards. Anyways, so guys, this was it from our side, and I hope आप लोगों को content बहुत अच्छा लगेगा. And whatever your suggestions are, whatever feedback are, you can always put it in the comments. Like, share, and subscribe तो करना ही है. And we'll stay updated with all of you. Semi-final and finals are very close. एक दो week की है बस बात है. So yeah, up until then, we'll see you again.